فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ TSRTC اروناچل گری پردکشینا کی منصوبہ بندی کرنے والے عقیدت مندوں کے لیے خصوصی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ گری پردکشن کے بعد بس 3 جولائی کو سے پہر 3 بجے تک ویلور کے گولڈن ٹیمپل پہنچے گی اور 4 جولائی کو صبح 10 بجے تک حیدرآباد واپس آ جائے گی۔ 3 جولائی کو گرو پورنیما کے موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC تمل ناڈو میں اروناچل گری پردکشینا کی منصوبہ بندی کرنے والے عقیدت مندوں کے لیے خصوصی سپر ڈیلکس لگژری بسیں چلا رہی ہیں۔ خصوصی بسیں 2 جولائی کو صبح 6 بجے MGBS سے شروع ہوگی اور آندھرا پردیش کے کنی پکا مندر میں درشن کے بعد رات 10 بجے تک اروناچل پہنچے گی۔ گری پردکشن کے بعد بسیں 3 جولائی کو سے پہر 3 بجے تک ویلور کے گولڈن ٹیمپل پہنچے گی اور 4 جولائی کو صبح 10 بجے تک حیدرآباد واپس آ جائے گی۔ پیکج ٹور کا کرایہ 2600 روپے فی گز بتایا جا رہا ہے اور دلچسپی رکھنے والے ویب سائٹ MGBS یا www.tsrtconline.in JBS دلسکھ نگر بس اسٹینڈ یا قریبی TSRTC ریزرویشن کاؤنٹر پر اپنا وزٹ محفوظ کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے ریتو بندو کے تحت 70 لاکھ کسانوں کے لیے 7,720 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ 11ویں قسط کے ساتھ ریتو بندو اسکیم نے کسانوں کے کھاتوں میں کل 72,910 کروڑ روپے کا حصہ ڈالا ہوا۔ ریاستی حکومت نے 7,720.29 کروڑ روپے جاری کیے، جس سے 2023-24 کے وناکلم سیزن کے لیے ریتو بندو اسکیم کے 11ویں ایڈیشن کے تحت تقریباً 70 لاکھ کسانوں کو فائدہ پہنچا۔ یہ رقم پیر سے کسانوں کے بینک کھاتوں میں جمع کر دی جائے گی۔ 11ویں قسط کے ساتھ ریتو بندو اسکیم نے کسانوں کے کھاتوں میں کل 72,910 کروڑ روپے کا حصہ ڈالا۔ اس اسکیم کا مقصد کسانوں کی مدد کرنا اور زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ اس سال 5 لاکھ نئے استفادہ کنندگان میں بھی اضافہ ہوگا، جن میں 1.5 لاکھ پوڈو کسان شامل ہیں، جن کے پاس پوڈو اراضی کے 4 لاکھ ایکڑ ہیں۔ یہ حکومت پر گزشتہ تقسیم کے مقابلے تقریباً 300 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ہوگا۔ ایک بیان میں وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے ریتو بندو اسکیم سے پہلی بار مستفید ہونے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مقامی زرعی عہدیداروں سے ان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ تقسیم کے عمل کو آسان بنایا جا سکے۔ فنڈز کی ایکڑ کے حساب سے تقسیم ایک قائم عمل ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ امداد کسانوں تک ان کی اراضی کی بنیاد پر پہنچ جائیں۔ تلنگانہ ملک کی واحد ریاست ہے جو سال میں 2 بار 10,000 روپے فی ایکڑ کی امداد فراہم کرتی ہے۔ کسانوں کو مدد کرنے کے اس عزم کی مثال مختلف اقدامات سے ملتی ہیں، جیسے ریتو بیمہ، بلا تعطل معیار اور مفت بجلی اور آبپاشی کے لیے بلا تعطل پانی کی فراہمی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی کسانوں کی فلاح و بہبود اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے غیر متزلزل لگن کی نشاندہی کرتی ہیں۔ سینٹرل کرائم اسٹیشن CCS حیدرآباد کی جانب سے ای سیوا اور می سیوا سینٹرز کی طرف سے فوری منظوری کے نظام کے تحت جاری کردہ نقلی پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ سے متعلق کیس کی سرگرمی سے تحقیقات کر رہی ہیں۔ پولیس کو پتہ چلا ہے کہ اب تک 15,000 جعلی سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے ہیں۔ CCS پولیس کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نقلی پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کے معاملے میں ای سیوا اور می سیوا مراکز کے منتظمین نے اہم رول ادا کیا ہے۔ حیدرآباد سینٹرل کرائم اسٹیشن CCS میں GHMC کے عہدیداروں کی جانب سے فرضی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے سلسلے میں مارچ کے مہینے میں درج کی گئی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد میں جرائم کے واقعات میں تیزی سے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور وزیر داخلہ محمد محمود علی سے استعفے کی مانگ کی ہے۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان سید نظام الدین نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جرائم پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دن دہاڑے قتل کے واقعات اور خواتین کے خلاف مظالم کے واقعات میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے کارپوریٹ طرز کے پولیس اسٹیشن تعمیر کیے اور پولیس
पुलिस ओहदेदारों को नई गाड़ियां फराहम की गई हैं और फ्रेंडली पुलिसिंग के नतीजे में जुराइम पर काबू पाने में कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 22 जून को हैदराबाद में 4 मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद के कत्ल की वारदातें पेश आईं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से पुलिस स्टेशनों के इफ्तिताह के दौरान जुराइम के वाक़यात में इजाफा होना अफसोसनाक है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना पुलिस को मुल्क में नंबर 1 पुलिस करार देते हैं और फ्रेंडली पुलिसिंग की सताइश की जाती है। निजामुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में जुराइम के वाक़यात में इजाफा हुआ है। भारत राष्ट्र समिति पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के शोलापुर के सड़क के सफर पर निकल चुके हैं। उनके साथ तकरीबन 600 गाड़ियों के एक बड़े काफिले के साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा, एमपीज, एमएलएज, एमएलसी और दीगर मुंतखब नुमाइंदे और बीआरएस कायदीन का एक वफ्द भी मौजूद है। वजीर आला धाराशिव जिले के ओमर गांव में दोपहर के खाने के लिए रुकेंगे और इसके बाद मुकामी रहनुमाओं और किसानों के साथ बातचीत करेंगे। वो शाम तक शोलापुर पहुंचेंगे जहां वो मुमताज लीडर भगीरथ बाल्के को बीआरएस में मदऊ करेंगे। इसके अलावा शोलापुर के बहुत से लीडरों और हथ करघा बुनकरों से भी मुलाकात करेंगे जो रोजी रोटी के लिए शोलापुर हिजरत कर गए थे। मंगल के रोज चंद्रशेखर राव को पंढीरपुर में लॉर्ड विठोबा मंदिर जाना है और वहां श्री विठल रुक्मणी मंदिर में खुसूसी पूजा करना है। इसके बाद तलजा भवानी मंदिर जाएंगे। वो सरकोली में मुकामी तौर पर तरतीब दिए गए प्रोग्राम में शिरकत करेंगे जहां उनसे मुकामी लोगों के साथ बातचीत करने और महाराष्ट्र के कई लीडरों को भी शामिल करने की उम्मीद है जो बीआरएस में शामिल होने के मुंतजर हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट MANUD के वजीर KT रामाराव ने आज पीर को उप्पल में स्काई वॉक और मिनी शिल्पाराम उप्पल के अहाते में कन्वेंशन हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। स्काई वॉक को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA ने 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया है और इसमें 6 हॉप ऑन स्टेशन हैं। स्काई वॉक बहुत सारी सहूलियात से आरास्ता है जिसमें मुतादिद सिमतों में पैदल चलने वालों की नकल और हरकत में सहूलत हम करने वाली लिफ्टें और सीढ़ियां शामिल हैं। रिवायती स्काई वॉक के बरक्स जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुजरने की इजाजत देते हैं। स्काई वॉक की लंबाई 660 मीटर है और इसकी चौड़ाई 4 मीटर है और चंद हिस्सों में 6 मीटर तक पहुंच जाएगी। स्काई वॉक बहुत सारी सहूलियात से आरास्ता है जिसमें मुतादिद सिमतों में पैदल चलने वालों की नकल और हरकत में सहूलत फराहम करने वाली लिफ्टें और सीढ़ियां शामिल हैं। रिवायती स्काई वॉक के बरक्स जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुजरने की इजाजत देते हैं। स्काई वॉक की लंबाई 660 मीटर है और इसकी चौड़ाई 3 मीटर और 4 मीटर है। मिनी शिल्पाराम उप्पल के अहाते में कन्वेंशन हॉल तकरीबन 1000 लोगों के बैठने की जगह मौजूद है और इसे HMDA ने 10 करोड़ रुपए से बनाया है। वजीर स्काई वॉक और कन्वेंशन हॉल का इफ्तिताह करने के बाद उप्पल म्यूनिसिपल ग्राउंड में एक जलसे आम से वजीर ने खिताब भी किया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस की तायीद के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील को नजरअंदाज कर दें क्योंकि मुस्लिम तहफ्फुजात के मसले पर KCR ने धोखा दिया है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस के अक़लियती कायदीन और कारकुनों ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR ने मुसलमानों को 12% तहफ्फुजात के वादों की 9 बरसों में तकमील नहीं की, बरखिलाफ इसके कांग्रेस की जानिब से फराहम करदा 4% तहफ्फुजात को सुप्रीम कोर्ट में खतरा लाहक हो चुका है। तहफ्फुजात को बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई मौसिर पैरवी नहीं की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने तहकीकात के मसले पर MIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के वोट से KCR को बरसर इख्तिदार आने में मदद की, लेकिन नई दिल्ली में ये वोट बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी की सिफारिशात के तहत मुसलमानों को 4% तहफ्फुजात फराहम किए। आनजानी YS राजशेखर रेड्डी ने उस वक्त के वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की मसाइब पर रोजगार और तालीम में 4% तहफ्फुजात फराहम किए जो आज तक जारी हैं। KCR ने 12% का वादा पूरा नहीं किया और मौजूदा 4% को बचाने में भी संजीदा नहीं है। अमित शाह ने हैदराबाद में मुस्लिम तहफ्फुजात के खिलाफ बयान दिया लेकिन KCR खामोश रहे। KCR के खामोशी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल नहीं किया जबकि 2 मरतबा इख्तिदार मुसलमानों की ताईद से हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को KCR का हकीकी चेहरा पहचान कर आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस की ताईद करनी चाहिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.